You said gig jobs. Entrepreneurship is one, मतलब you can break down entrepreneurship in two parts, right? एक है कि आप बहुत बड़ा एम्पायर बनाते हो, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हो, बहुत आइडिया तोड़ू फोड़ू लाते हो, लाइक दैट इज़ वन. एंड देन अदर इज जस्ट आप अकेले हो, फ्रीलांसर जैसे, वो भी एंटरप्रेन्योर ही होता है, अकेले ही कर रहे हो. विच वन डू यू थिंक इज मोर I think viable? To each his own, right? To each his own, her own. कुछ लोग जिनको to run a company, you don't just need to have business smarts, right? Negotiation skills and so on. To run a company, you also need people skills, right? And not everybody has people skills. People skills में जो अपना emotional control का aspect होता है, लोगों को manage करने का, that's a very distinctive skill. And if you're either an introvert or someone who lacks people skills, but you're able to build formidable subject matter knowledge, so doing your own thing as a gig worker on a global scale, I think very feasible है, very possible है. And I think वो perfectly viable career option बन जाएगा. So मानिए you could become the leading headhunter for financial services CFOs for the fintech world. Right? And if you do that on a global basis and you make a name for yourself through LinkedIn, through social media, through books, through podcasts, that I am the guru of hunting for CFOs for fintech companies the world over, right? And you could just do that and get paid really well for it, right? दुनिया में कहीं पे भी किसी fintech company को CFO चाहिए होगा, आपको डायल करेंगे, आपने अपनी पूरी नेटवर्क बना ली होगी फिनटेक CFOs की, वो आपके साथ फर्स्ट नेम टर्म्स पे होंगे, and you'll be placing fintech CFOs around the world. So whilst the negative aspect of AI of job losses is apparent, the positive aspect of this being a connected world, I think उसको हम पूरा फायदा नहीं उठाया इंडिया में. हम अभी भी थोड़ा सा सोचते हैं अपने देश के अंदर, whereas हमारे देश में जो टैलेंट है, जो हमारी एजुकेशन लेवल्स हैं, they can be used to service the world, and I think वो होगा. Increasingly people will say, if I need the world's best expert on, say, influencing podcasts, if that person is sitting in Coimbatore, even if I'm sitting in Frankfurt, let me reach out to him or her. In that global ecosystem, we will find our place in the sun. Interesting. So you said ki to each their own, and if you can just become really, really good, both have opportunities, regardless of the technology playing. Absolutely. And let me validate that, right? Let me validate by using your own example, right? Why did Macron do a interview with you, right? ऐसा तो नहीं कि उसको कल इलेक्शन लड़नी है, राज शमानी के साथ पॉडकास्ट करेगा तो स्विंग हो जाएगा वोट्स. He did a pod with you because he is just as interested, right? Or his team is just as interested in Macron की image building here, because for all he knows or we know, in his post-political career, he might be a business leader who needs to build out an India franchise. And if therefore people in India are familiar with him, then so be it. Plus, there'll be enough people in France or across francophones around the world who will be watching your pod, right? The global aspect of what we do is actually pretty powerful, right? And in a way, our life is a dance between appealing to a global audience if we are doing something very niche. तो अगर आप influencer, fintech CFOs के expert हो, अगर आप global audience बनाओगे तो आप एक niche चीज़ को बड़ा career बना सकते हो. And then you loop back to local knowledge, right? So you loop back to saying, I'm an expert on the Indore restaurant scene, on the Indore खाने पीने का scene. It's a niche market, but अगर आपको इंदौर में रेस्टोरेंट लगानी है या फूड में बिजनेस करना है, आप मुझसे कंसल्टेंसी लो या मुझको आप टर्न की प्रोजेक्ट दो, मैं आपका बढ़िया सा रेस्टोरेंट शुरू कर देता हूँ इंदौर में, राइट? तो दोनों खेल रिलेवेंट बन जाएंगे, बट इन नाइदर ऑफ देम विल देयर बी अ बॉस टू ब्लेस यू सेइंग, यार तेरा ये प्रमोशन, ये तेरी वीपी, ये तेरी साइड, ये कार पार्क स्पॉट. A lot of this is about making career decisions by yourself, accumulating knowledge, relationships, contacts, and then just the steady grinding over the years of building a franchise. Have you seen any country जहाँ पे ये polarization हुआ और middle class almost break होने लग गई, middle class टूटने लग गया, and middle class के पैसे कम होने लग गए, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया. लेकिन in hindsight, if you look at, वो भी इस दौरान से गए और एक कंट्री ने बहुत अच्छा किया और एक कंट्री ने बहुत बुरा किया. सो देखिए, दो कंट्री जहाँ पे मिडिल क्लास की पिटाई ज़बरदस्त हुई है, जो बहुत क्लियरली दिखता है, यूके एंड यूएसए,
राइट. तो दोनों देशों में पोलराइजेशन बिटवीन mid 80s to roughly 2015 जबरदस्त हुई. Right, I saw it in UK myself. My parents migrated to UK in 91. We lived in one of the outer suburbs of London. तो वहाँ पे सारे ये कॉल सेंटर्स थे. जो ब्रिटिश इंश्योरेंस कंपनीज थे उनके कॉल सेंटर थे. लोग अपना क्लेम के लिए वहाँ पे फ़ोन करते थे. सो 90 में जब हम पहुँचे, देयर वाज अ डिसेंट सबर्बन टाउन. बाय 2001 वो सारे कॉल सेंटर जॉब्स इंडिया आउटसोर्स्ड हो गए. By 2008 when I left that small suburb of London, वो सारे बिल्डिंग खाली हो गए क्योंकि वो सारे जॉब्स इंडिया आ गए. गुड़गांव, बैंगलोर आ गए. राइट. एंड बिकॉज फॉर दोज ब्रिटिश कंपनीज वाज फार चीपर टू एम्प्लॉय अ कॉलर इन इंडिया दैन हैविंग अ ब्रिटिश पर्सन. राइट. एंड इफ आई गो बैक टू दैट टाउन इन इंग्लैंड वेयर आई ग्रो अप, अभी काफ़ी बैड सीन है. राइट. वो बिल्डिंग्स आर डेरेलिक्ट. टाउन सेंटर पूरा बर्बाद हो गया, पूरा रेक्ट हो गया है. राइट. यूज्ड टू बी अ लवली शॉपिंग मॉल, हाई स्ट्रीट थे, नाइस दुकान थे, रेस्टोरेंट थे. अभी मतलब रात को 8 बजे के बाद जाने में डर लगता है. ड्रग डीलर्स घूमते हैं, क्राइम आ गया, एटसेट्रा. राइट. सो एंड दिस इज नॉट सम सम गॉड फॉरसेकन पार्ट ऑफ द यूके. दिस इज अ सबर्ब ऑफ लंडन. राइट. एंड 10 साल में जॉब्स वहाँ से इंडिया आ गए. ठीक है. एंड बाय द वे दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर राइटिंग ब्रेक पॉइंट. ये जो चेंजेस होते हैं बहुत स्पीड से होते हैं. सो ऐसा नहीं कि आप और मैं बहस कर रहे हैं आज से 5 साल बाद धीरे धीरे होगा. ये स्पीड से इंडिया में हो रहा है. एंड इट्स सो फास्ट दैट अनलेस यू आर अवेक एंड अलाइव, राइट, यू कैन नाइदर अंडरस्टैंड द रिस्क्स टू योर बिजनेस नॉर अप्रिशिएट द अपसाइड पॉसिबिलिटीज. तो यूके में मैंने ये पिटाई देखी है. यूएस में मैं बड़ा नहीं हुआ था, मैं काम पे जाता हूँ. बट यूएस में जब मैं छोटे शहरों में जाता हूँ, I can see the challenges in small towns in America. Why just small towns? Even if you go to say places like Philadelphia, उसके जो थोड़े से वर्किंग क्लास इलाके हैं, फिलाडेल्फिया जैसे शहर में या शिकागो जैसे शहर में वर्किंग क्लास इलाके हैं, दैट टेरिफाइंग प्लेसेस टू गो टू. राइट. मतलब होश उड़ जाता है, पूरा स्लम जैसा माहौल है. देयर आर यंग मैन वेयरिंग हुडीज एंड विथ वेपनरी. एंड रात को 5 बजे के बाद कोई ऊबर ड्राइवर आपको वहाँ पे, रात को क्या शाम को 5 बजे के बाद कोई ऊबर ड्राइवर आपको वहाँ पे ले नहीं जाएगा. बिकॉज वो बोलेगा गाड़ी का पहिया भैया उठा के ले जाएंगे, आप और हम तो ख़त्म ही हो जाएंगे, गाड़ी का पहिया भी नहीं रहेगा. सो दैट्स अमेरिका एंड यूके फॉर यू. आफ्टर 20-30 years ऑफ वाइट कॉलर जॉब्स बीइंग आउटसोर्स्ड टू इंडिया एंड ब्लू कॉलर जॉब्स बीइंग सेंट टू चाइना. तो अब क्या हो रहा है उधर? वहाँ पे सीन टफ है का तो बहुत खराब है, that we know. and that's why US में मांगा है, right? Right. So what we discussed it in the previous part, what Trump very cleverly did is he saw this and he said, यार ये लोग तो पिट गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा ये क्यों पिटे हैं. Right. Because to be honest, if you and I lived through that 10 years में पूरा हमारा जिंदगी अपसाइड डाउन हो गया. राइट. होश उड़ गए. सोचिए 1984 में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन सिंग्स बॉर्न इन द यूएसए. राइट. बेसिकली हम कितने प्राउड हैं कि हम अमेरिकन हैं, बॉर्न इन द यूएसए, हमारी मस्त जिंदगी है. बाय 2004 दोज जॉब्स आर गॉन टू चाइना. राइट. अनएम्प्लॉयड इन द यूएसए हो गया वो तो. बॉर्न इन द यूएसए, अनएम्प्लॉयड इन द यूएसए हो गया. राइट. इन द स्पेस ऑफ 20 years. And Trump by 2014 is saying, यार ये मेरे लिए तो मौका है, ये सारे गरीब अनएम्प्लॉयड फ्रस्ट्रेटेड गुस्से में हैं, इनको मैं बोलता हूँ तुम्हारे पंगे क्यों आए. एक तो चाइना ने तुम्हारे जॉब लिए हैं और बाकी सारे जो बाकी इमिग्रेंट लोग हैं इंडिया से. हाँ. Initially he started with in his first term, when he did his first term, he said सारे immigrants, and in the second term he realized let's villainize Asians and then Indians, and then you can see we discussed in the last part, इस वाले में क्या किया, out of nowhere जाके ईरान को फोड़ दो, क्योंकि ईरानियन लोग imminent अटैक करने वाले हैं हमारे ऊपर, तो उनको फोड़ दो. And you're now seeing the consequences of that, right? So neither UK nor USA have found any answer, but the politicians have capitalized by focusing on middle class discontent. Now अगर positive story लेनी है, positive story. Before positive, do you think कि UK और US वहाँ पे middle class ये नहीं समझ पाए कि जॉब्स जा रही है, ये चेंज आ रहा है, जो ये एक बार पहले UK में हुआ, फिर US में हुआ, उनकी जॉब्स इंडिया में आ गई, उनकी जॉब्स चाइना में चली गई. हमारी अब इंडिया में ये होने पा रहा है और ये हो रहा है. हमारी जॉब्स AI खा रहा है. राइट. मतलब हमारे इधर चाइना वगैरह नहीं जा रही जॉब्स, इट्स जस्ट आवर जॉब्स इज गोइंग टू AI. एंड योर प्रेडिक्शन इज कि सेम चीज हमारे इधर भी होगी और ये होने लग गई है. होने लग गई. सो यूके एंड US, उनका स्टेट सिस्टम तो अच्छा था. देयर वाज बेटर हेल्थ केयर, बेटर
probably kids education. तो वहाँ तो भी सर्वाइवल हो गया. यहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो देन हाँ जी. So we don't have education, we don't have health. तो आपने ये मुद्दा छिड़ा ना, इसमें मेरे ख्याल से because I lived through the UK वाला piece and I saw Brexit in a sense. इंडिया आ गया था बट Brexit मैंने देखा यहाँ पे बैठे बैठे. तो 3 चीज़ें होती है राज जो बहुत दिलचस्प है. जब ये रियल टाइम होता है, राइट, जब रियल टाइम होता है, द टाउन वेयर आई ग्रो अप इन लंडन व्हेन इट वाज बीइंग हॉलोड आउट, नोबडी टोल्ड द पीपल इन दैट टाउन क्या हो रहा है, राइट. इट टुक मी, बिकॉज आई यूज्ड टू गो बिटवीन इंडिया एंड यूके, इट टुक मी 10 years. मैं स्कूल ख़त्म किया, कॉलेज ख़त्म किया, जॉब शुरू किया. इट टुक मी 10 years टू अंडरस्टैंड वाई द टाउन आई ग्रो अप इन द सबर्ब्स ऑफ लंडन गॉट हॉलोड आउट. वहाँ के लोगों को तो शायद आज तक समझ नहीं आया क्या हुआ है. मुझे 10 साल लगा. एंड नोबडी टोल्ड द पीपल इन दैट टाउन. देयर वाज अ लोकल न्यूज़पेपर बट उसमें इस प्रकार की खबर नहीं आती थी. एंड लोकल पॉलिटिशियंस केप्ट देयर माउथ शट इन दैट टाउन इन इंग्लैंड. दे डिडंट एक्सप्लेन कि आपके सारे जॉब्स इंडिया जा रहे हैं बिकॉज आई डोंट नो व्हाई. आई मीन दे जस्ट डिडंट डू इट, राइट. सिमिलरली जब अमेरिका के जॉब्स सक आउट हो गए चाइना में, it wasn't until 2005-06, by which time most of the jobs had gone to China, that आलोचना शुरू हुई है यूएस में कि यार आपके जॉब्स तो निकल गए यहाँ से. and that's the first pass to realize. आज भी इंडिया में कुछ लोग हम जैसे बोल रहे हैं कि रोबोटाइजेशन हो रही है, ऑटोमेशन हो रही है. when we were researching Breakpoint, we went back and looked at studies in India. Studies have been done from 2012 onwards कि इंडिया में फैक्ट्री से जॉब निकल रहे हैं, राइट. एंड द डेटा सजेस्ट दैट फैक्ट्री जॉब्स तो ऑटोमेट होने लगे इंडिया में करीबन सन 2000 से, राइट. तो रिसर्च रहता है, डेटा में दिखता है, लेकिन कोई इसका जिक्र नहीं करता बिकॉज इट डजंट सूट एनीबडी टू publicize these things. If I am the employer automating my factory, I'm not going to do a podcast with Raj Shamani saying, Raj, मैं अपनी factory automate कर रहा हूँ, 90% लोगों को निकाल रहा हूँ. If I am the politician in that neighborhood, neither am I going to be telling my constituencies, I'm sorry, कल से तुम लोग सब unemployed. So, and the academic को बैठ के अपना पेपर लिख रहा है, but उसकी पेपर कोई पढ़ नहीं रहा. Other than geeks like me who are reading it now saying, अरे इंडिया में तो डेटा में दिख रहा है कि 25 साल से हमारी फैक्ट्री से जा रहे हैं. तो ये पहला पंगा होता है. दूसरा पंगा, इवन आफ्टर द जॉब्स आर गॉन, राइट. सो यूके यूएस के जॉब्स चले गए हैं, राइट. यूके कॉल सेंटर्स के जॉब यहाँ पे आ गए हैं, यूएस के जॉब चाइना चले. इवन आफ्टर द जॉब्स आर गॉन, इट्स नॉट ऑब्वियस क्या करना चाहिए, राइट. सो अमेरिका बोल रहा है ना, ट्रम्प बोल रहा है कि मैं अमेरिका में जॉब्स बनाऊंगा. बस तुम कैसे बनाओगे? वाई विल एनी फैक्ट्री ओनर इन हिज राइट माइंड पे 4 times द चाइनीज सैलरी टू एम्प्लॉय अमेरिकन इन मिशिगन, राइट. और मिशिगन ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मिशिगन में कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाएगी. सिमिलरली इफ आई एम एन इंश्योरेंस कंपनी इन द यूके, वाई विल आई ब्रिंग द जॉब्स बैक टू यूके. ठीक है, कुछ हद तक अब वेस्टर्न कंपनीज क्या कर रहे हैं, रादर देन एन इंडियन कॉल सेंटर विच इज द नेक्स्ट हिट वी फेस, दे आर सेइंग अब एआई काम करेगा. सो दे आर सेइंग अब इंडिया में कॉल सेंटर में इंडियंस को निकाल के एआई लगा दो. बट इट्स नॉट क्लियर व्हाट डू यू डू इन यूके एंड यूएस टू क्रिएट जॉब बैक देयर, राइट. सो वो दूसरा पंगा है कि एक तो लाइव जब होता है कोई बात नहीं करता, जब अनएम्प्लॉयमेंट और बर्बादी आ भी जाती है, अदर देन क्रिएटिंग रेसिस्ट सेंटिमेंट्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ब्रेक्सिट, मागा, it's not clear to politicians what is the economic answer to this problem.